Hello students, welcome back to my channel. Very good morning to all of you. I hope that you are doing well. So in today's session, we will see again the MCQs or the practice questions on the linguistic and the language theory. So let's start with, we are studying the English literature paper number 2 for the SET and NET examination. And these are the questions which is helpful for you for the upcoming SET examination, especially if you are preparing for the SET and the NET examination, as well as there will be a PhD entrance exam also nowadays. Solapur University's PhD entrance exams forms are started, online form application. अगर आपने नहीं भरा है तो आप सोलापुर यूनिवर्सिटी या अहिल्या बाई होलकर यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्या करो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पेट एग्जाम हो या सेट एग्जाम हो या नेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते तो दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस क्वेश्चन। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉम चॉम्स्की, फर्डिनेंड डी शेशो, एडवर्ड स्पेयर एंड लेनार्ड ब्लूमफील्ड। Which one is correct? So the correct option is option number B, फर्डिनेंड डी शेशो। शेशो एक मॉडर्न स्ट्रक्चरलिस्ट माने जाते हैं एंड he gives us the structural linguistic theory, that is why he is known as father of modern structural linguistic. Next question. The concept of Lang and Parole was introduced by whom? Lang और Parole का जो concept है वो हमें किसने दिया था? So let's see. The concept of Lang and Parole given by the Roman Jakobson, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky या Charles Hockett. So the correct option is again B, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure हमें Lang और Parole यानी कि Lang एक abstract language और Parole यानी कि उसको apply करना on the theory, like this theories is given by us to Ferdinand de Saussure. Next question. Which of the following term describe the smallest unit sound can distinguish one word from another? So, which is the smallest term unit of the sound? The morpheme, phoneme, alphone, or the grapheme? Which one is correct? So, phoneme B is correct. Phoneme जो है वो sound की सबसे छोटी unit मानी जाती है. Next question. What is a morpheme? Morpheme क्या होते हैं? So morpheme की अगर हम बात करें तो smallest unit of speech sound होती है, smallest meaningful unit of language होती है, या rule of sentence formation होता है, या variation of phoneme होता है. So the correct option is again B, the smallest meaningful unit of language. ठीक है? Next question. The distinguish between competence and performance was made by. कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ये जो डिस्टिंग्विश है ये किसने किया था? फर्डिनेंड डी शेशो ने, नॉम चॉम्स्की ने, एमए के हॉलिडे ने, या डेल हेम्स ने. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉम चॉम्स्की. नॉम चॉम्स्की जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं भाषा के अंतर्गत ज्ञान और उसके अंदर कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन भी वो देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लिंग्विस्टिक टर्म describe the study of how context contribute to meaning? कौन सा linguistic term है जो ये describe करता है कि how to study the context contribute to meaning? So the correct option, पहले option देखते हैं, semantics, syntax, pragmatics और morphology. तो correct option हो जाएगा हमारा C, pragmatics. Next question. The term communicative competence was coined by. कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था? देखो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमें नॉम चॉम्स्की से मिलता है, और ये क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया था? नॉम चॉम्स्की ने, डेल हेम्स ने, माइकल हॉलिडे ने, स्टीफन क्रशॉन ने. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डेल हेम्स ने. बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि चॉम्स्की हमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करते हैं या कॉन्सेप्ट देते हैं, बट टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये जो है ये किसका है? डेल्स हेम्स का है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स? कौन सा लिंग्विस्टिक का ब्रांच स्टडी करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स? फोनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी या सेमेंटिक्स? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये जो है ये क्या करता है? लिंग्विस्टिक स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि वर्ड के अंतर्गत संरचना का जो स्टडी करता है वो होता है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑलोमॉर्फ्स? ऑलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, वेरिएंट phonetic forms of single morpheme, word with opposite meaning and different dialectical pronunciation. So what is the correct? तो ऑलोफॉर्म्स क्या होते हैं? तो ऑलोफॉर्म्स जो है वो होते हैं वेरिएंट फोनेटिक फॉर्म्स ऑफ सिंगल मॉर्फेम। ऑलोफॉर्म वेरिएंट फॉर्म्स होते हैं फोनेटिक फॉर्म्स ऑफ सिंगल मॉर्फेम। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सशोरियन लिंग्विस्टिक द लिंग्विस्टिक साइन कंसिस्ट ऑफ? सशोरियन लिंग्विस्टिक में जो लिंग्विस्टिक साइंस है वो क्या कंसिस्ट करते हैं? साउंड एंड मीनिंग, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, वर्ड एंड ऑब्जेक्ट, लैंग एंड स्पीच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंटेबल और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोनिम इज कॉल्ड? प्रिंटेबल और रिटन रिप्रेजेंटेशन जो फोनिम की होती है उसे क्या कहते हैं? मॉर्फिम कहते हैं, ग्राफिम कहते हैं, एलोफोन कहते हैं या सिंटैक्स? तो करेक्ट ऑप्शन होता है बी हमारा ग्राफिम, क्योंकि जब हम लिखते हैं और उसका जो सबसे छोटी इकाई है, छोटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द इनएनेटनेस हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन? लैंग्वेज एक्विजिशन में इनएनेट थ्योरी या जो इंसान होता है उसकी लैंग्वेज सीखने की जो है वो उपजित प्रक्रिया होती है या इनएनेट प्रोसेस होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन ये जो थ्योरी है वो किसकी है? तो वह है नॉम चॉम्स्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड? क्या कहते हैं स्टडी को जो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड की बात करता है? तो वो होता है हमारा फोनेटिक्स। क्या होता है वो हमारा? फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाउंड मॉर्फिम? इसमें से कौन सा बाउंड मॉर्फिम है? एक होता है हमारा फ्री मॉर्फिम, दूसरा होता है हमारा बाउंड मॉर्फिम। तो बाउंड मॉर्फिम फ्री मॉर्फिम से डिफरेंट होता है। जो फ्री मॉर्फिम में जैसे हाउस है ये फ्री मॉर्फिम है, रन फ्री मॉर्फिम है, कैट फ्री मॉर्फिम है। बट हम किस वर्ड्स को अन लगाते हैं, फुल लगाते हैं, तो ये अन क्या हो जाता है? बाउंड मॉर्फिम हो जाता है। नेसेसरी ये एक फ्री मॉर्फिम है, अननेसेसरी अगर होगा तो वो बाउंड मॉर्फिम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द syntactic rules that allows us to generate an infinite number of sentences from a finite set of rules are called structural grammar, traditional grammar, then the functional grammar या जनरेटिव ग्रामर। तो एक सिंटैक्टिक रूल्स वो अलाउ करते हैं हमें टू जनरेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स, उसे हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। बी इज करेक्ट हियर। क्या कहते हैं उसे? एक मर्यादित हमें रूल्स दिए गए, उसे हम बहुत ज्यादा अमर्यादित सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। फाइनाइट से इनफाइनाइट से फाइनाइट, फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स call that generative grammar. Next question, the cooperative principle of conversation which include 4 maxims are proposed by? एक cooperative principles of conversation जिसमें include है 4 maxims और वो किसने propose किए थे? जॉन ऑस्टिन ने, जॉन सेरेल ने, पॉल गर्स ने, डैन सुपरबर ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉल गेर्स। सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? ग्रीट ने, पॉल ग्रीट्स जिसे हम पढ़ेंगे, उन्होंने कन्वर्सेशन के 4 रूल्स दिए थे, 4 मैक्सिम्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशनरी, इलोकेशनरी एंड प्री लोकेशनरी, दीज आर दी
लोकेशनरी, इलोकेशनरी एंड प्री लोकेशनरी एक्ट्स आर द पार्ट ऑफ विच थ्योरी? तो ये स्पीच एक्ट थ्योरी है जो हमें किसने दी थी? ये हमें ऑस्टिन ने दी थी, और इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पीच एक्ट थ्योरी। जेल ऑस्टिन की एल ऑस्टिन की थ्योरी है स्पीच एक्ट थ्योरी। उन्होंने हमें ये पार्ट्स दिए थे, लोकेशनरी, इलोकेशनरी एंड प्री लोकेशनरी। तो स्पीच एक्ट थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इन्फ्लुएंशियल बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916? कौन है इस बुक के ऑथर? द इन्फ्लुएंशियल बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916 किसका है ये बुक? तो लेonard ब्लूमफील्ड, फर्डिनांड डी शेशोर, जिलिग हैरिस, एडवर्ड स्पेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक 1916। ये बुक है हमारे फर्डिनांड डी शेशोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्पोर्क, स्पून एंड फोक, ये किसका एग्जाम्पल है? क्लिपिंग का, ब्लेंडिंग का, एक्रोनिम का, बैक फॉर्मेशन का? तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्लेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज कॉल्ड? प्रैग्मेटिक्स, सिमेंटिक्स, इटिमोलॉजी और सिंटैक्स? तो स्टडी ऑफ मीनिंग इसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मीनिंग को सिमेंटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a variety of language used by a particular social class or group is called? a variety of language, dialect, sociolect कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे? sociolect। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर किससे एसोसिएटेड है? तो डीप स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर से रिलेटेड है, और ये है नॉर्म चॉम्स्की का। तो डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, नॉर्म चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ आइडियोलेक्ट? अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ होल नेशन, the speech habit of an individual person, a specialized vocabulary of profession, a secret language code. Which one is correct? So the correct option is B, the speech habit of individual person. Next question, when two or more words are spelled the same but have different meaning and origin, they are called? मतलब spelling same है, pronunciation, okay, two or more words spelled the same बट मीनिंग जो है वो अलग है, तो वो क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं, होमोग्राफ्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स। सो टू और मोर वर्ड्स स्पेल्ड द सेम, नाइट जैसे सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स अगर हम देखते हैं बट उसकी मीनिंग अलग निकलती है, तो वो होता है होमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेयर वर्ब हाइपोथेसिस डील विद? द स्पेयर वर्ब की जो हाइपोथेसिस है वो डील करते हैं किससे? लैंग्वेज एंड जेंडर से, लैंग्वेज एंड ब्रेन से, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी एंड डिटरमिनिज्म से, एंड लैंग्वेज एक्विजिशन से। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दैट इज डिटरमिनिज्म। सो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी एंड डिटरमिनिज्म, इट इज जो है अपनी भाषा या अपने जो थॉट्स है ना, उसे बयां करने के लिए अपनी भाषा आणि विचार जे आहे ते व्यक्त करण्यासाठी एक हायपोथेसिस, स्पेयर वर्ब हाइपोथेसिस, और वो डील करता है। सी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, SFL? किसने इंट्रोड्यूस कराया था? नॉर्म चॉम्स्की ने, MA हॉलिडे ने, JR फिर्थ ने, ब्लूमफील्ड ने। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक SFLA, ये हॉलिडे का है। हॉलिडे इन्होंने हमें लैंग्वेज का एक सोशल एज वेल एज द लिंग्विस्टिक अप्रोच दिया था, जिन्होंने ये थियरी डेवलप किया था MA हॉलिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओमिशन ऑफ वन और मोर साउंड इन वर्ड और फ्रेज, जैसे कैमरा प्रोनाउंस एज अ कैमरा, इज नोन एज एसिमिलेशन, इल्यूजन, इपिंथेसिस और मेटाथेसिस। मतलब किसी वर्ड से हम क्या करते हैं, एक या दो साउंड रिमूव कर लेते, तो हम इसे क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इल्यूजन। जब हम फास्ट से बोलते हैं तो हमारा एक दो, जैसे कैमरा तो कैमरा जिसे प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, तो इससे एक दो साउंड हमारी मिस हो जाती है, तो उसे इल्यूजन कहेंगे। इल्यूजन अलग, इल्यूजन अलग।
विच डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज रेफर टू द एबिलिटी टू टॉक? कौन सा डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज refers to the ability to talk about things not present in the immediate environment? So arbitrariness कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या ड्युअलिटी कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो हमारे सामने नहीं है, वर्तमान में हमारे सामने नहीं है, बट पास में कुछ थिंग्स है जिसे हम रिकॉल करके बोलेंगे, उस एबिलिटी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज दैट डेवलप एज कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज फॉर ट्रेड और कॉमर्स इज कॉल्ड? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे हम पिडगिन कहते हैं, यानी कि दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ आते हैं और वो अपनी एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं ट्रेड या कॉमर्स के लिए, कॉमन लैंग्वेज, जिसे हम पिडजिन कहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ पिडजिन बिकेम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी इट इज कॉल्ड? और उन्हीं पिडजिन की अगर फर्स्ट लैंग्वेज बन जाते, मतलब उनकी रोजमर्रा की वही लैंग्वेज अपनी बन जाती, तो उसे हम सिरोल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज हाउ लैंग्वेजेस प्रोसीड इन ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड? मतलब एक ब्रांच लिंग्विस्टिक का जो ये स्टडी करता है कि लैंग्वेज कैसे प्रोसीड करती है ह्यूमन ब्रेन में, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरोलिंग्विस्टिक। क्या कहेंगे हम? सी, न्यूरोलिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग एन अफिक्स फ्रॉम अ ओल्ड वर्ड। पुराने वर्ड से उसका अफिक्स निकालो, और जैसे एडिटर है, एडिटर से OR मैंने रिमूव कर दिया और सिर्फ एडिट रह गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वाइनिंग कहेंगे, बैक फॉर्मेशन कहेंगे, कन्वर्जन कहेंगे या बोरोइंग कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे क्या? बैक फॉर्मेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल ऑर्गन? लैरिंक्स, फेरिंक्स, डिफरेंट, वुवला। कौन सा क्या नहीं है? वोकल ऑर्गन नहीं है। वोकल ऑर्गन नहीं है ये बताना है हमें, तो कौन सा वोकल ऑर्गन नहीं है? तो लैरिंक्स वोकल ऑर्गन है, फेरिंक्स वोकल ऑर्गन है, वुवला भी वोकल ऑर्गन है। डिफग्राम जो है वो वोकल ऑर्गन नहीं है। डिफग्राम क्या है? एक लैरिंक्स एक स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र यानी वोकल ऑर्गन है। फेरिंक्स भी हमारा जो थ्रोट है उससे रिलेटेड है, बट जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम जो है वो हमारे लंग्स में होता है और वो प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है, हमारे लंग्स को प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे कुछ स्वर यंत्र होते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स, तो हमारा लैरिंक्स, फेरिंक्स जो है, लैरिंक्स एक स्वर यंत्र है, फेरिंक्स एक हमारे थ्रोट से रिलेटेड है, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। वुल्वा भी सेम है, बट डायफ्राम जो है वो हमारे लंग्स में होता है। नेक्स्ट, फोनिम्स दैट आर पोजिशनली कंडीशन वेरिएंट ऑफ द सेम फोनिम आर कॉल्ड? तो उसे हम एलोफोन्स कहेंगे। एक ही बार फोनिम बदल जाते हैं, स्पिन, पी, ऐसे इस तरह से कंडीशन वेरिएंट्स बन जाते हैं, तो उसे हम एलोफोनिम्स कहेंगे। बी इज करेक्ट। Next question 35. The study of linguistic science symbol, how meaning is created is known as stylistics, semiotics, hermeneutics, philology. तो क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस सिंबल, और वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिमोइटिक्स। क्या कहते हैं? सिमोइटिक्स। Who wrote the book Syntactic Structure? 1957 का बुक है। फर्डिनेंड डी शशोर, नॉर्म चॉम्स्की, रोमन जैकबसन, C.S. पियर्स। तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ये बुक है नॉर्म चॉम्स्की की, 1957 में वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, द phenomenon where a single word has multiple historical related meaning is called? तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेमी, यानी कि एक ही शब्द के ज्यादा एक दूसरे से क्या है? फोनिमेनन, सिंगल वर्ड हैज मल्टीपल हिस्टोरिकली रिलेटेड मीनिंग। मतलब देर आर द सिंगल बॉडी एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड वो जो वर्ड है एक दूसरे से मल्टीपल हिस्टोरिकली कनेक्टेड है, उसे हम कहेंगे पॉलीसेमी। नेक्स्ट, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, विच सेमेंटिक rhetorical trope is prominent here? पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कौन सा है ये? तो ये मेटोनॉमी है। Next question, a critical period hypothesis, CPH, is related to sound change, language acquisition, machine translation, discourse analysis. So ये related है language acquisition से, the critical period hypothesis.
नेक्स्ट देख लेते हैं, हु फॉर्मुलेटेड द स्पीच एक्ट थ्योरी। तो ये हमारी जॉन ऑस्टिन की, जेएल ऑस्टिन की थ्योरी है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next, a situation where two distinct varieties of a language are used in community under different social condition is called। मतलब क्या कि एक ही सोसाइटी में रहते हुए भाषा के जो है दो अलग अलग रूप हैं, एंड सिचुएशन वेयर टू डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, और वो यूज करी जाती है एज अ कम्युनिटी अंडर डिफरेंट सोशल कंडीशन, उसे हम कहेंगे डिग्लोसिया। क्या कहेंगे हम उसे? डिग्लोसिया। नेक्स्ट, द चेंज इन द साउंड ऑफ लैंग्वेज ओवर अ हिस्टोरिकल पीरियड इज स्टडीड अंडर। मतलब टाइम के साथ चेंज हो जाती है द चेंज इन द साउंड। इट इज द सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक, डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक, टाइपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक या अप्लाइड लिंग्विस्टिक। तो इसे हम कहेंगे डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। भाषा का जो ऐतिहासिक और पीरियड, टाइम पीरियड के साथ हिस्टोरिक लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं, तो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक। Next, which of the following is classical example of minimal pair in English? Cat, dog, pin, bin, CC, light, bright. So which is correct? So pin, bin is correct. Pin, bin is known as minimal pair. Next, the study of use of space and distance in communication is called. तो space और distance का study जिसमें होता है वो होता है हमारा proxems. क्या होता है? proxems. Next, the word UNESCO is an example of. यूनेस्को क्लिपिंग का एग्जाम्पल है, एक्रोनिम का, तो इट इज अ एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म है ये। नेक्स्ट, हु डिफाइंड लैंग्वेज एज अ, किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेशन पहचान, अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज, इमोशन एंड डिजायर बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वल्नरेबिलिटी, ओके, या वल्नरेबिलिटी प्रोड्यूस सिंबल। एडवर्ड स्पेयर, बर्नार्ड ब्लॉच, नॉम चॉम्स्की, Ferdinand de Saussure. So the correct option is Edward Speer. ये फेमस डेफिनेशन है हमारे एडवर्ड स्पेयर का। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज टू क्रिएट द वेल फॉर्म सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स या फोनोलॉजी। तो इसे कहेंगे हम, क्योंकि ये क्या है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, रूल्स है, वेल फॉर्म रूल्स है, सो इट इज अ नोन एज सिंटैक्स। Next, which English vowel is known as the swatch? CHWA, swatcha जिसे हम कहेंगे, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा इंग्लिश वोवल है। तो ये है इंग्लिश में ज्यादातर कॉमनली जो यूज किया जाता है, जिसे हम बोलेंगे दिस वन, बी इज अ की साउंड। Next, IC analysis, immediate constituent analysis, was initially developed by. Immediate constituent analysis किसने डेवलप किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, नॉम चॉम्स्की, लेनार्ड ब्लूमफील्ड, फर्डिनांड डी शेशोर या जेलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। इन्होंने क्या किया था? हमें इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। Next, the study of language in relation to society is called social linguistics. B is correct. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, so please like, share and subscribe my channel.